बेटे सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैनकला डिस्ट्रिक्ट पटियाला ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਜ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ, x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ? A B C। ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ x ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ x ਜਾਂ y ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 100 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਂਗਲ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ 1 ਪਲੱਸ 100 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 180 ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਟਸ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ, ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਗਲ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ 80 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਐਂਗਲ 1 ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ 100 ਪਲੱਸ 100 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? 180 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ ਆ 100 ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 100 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 180 ਚੋਂ ਮੈਂ 100 ਘਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 80 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? 80 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 180 ਦਾ। x plus 80 ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਂਗਲ A x ਹੈ, एंगल B भी x है और एंगल C कितना है? 80 डिग्री। मैं तीनों को जोड़ के बराबर है 180 दे लिखिए। हुन x plus x 2x plus 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू बराबर होगी 180 डिग्री। a plus 80 उधर जाके हो जाएगा माइनस 80 डिग्री। तो 2x बराबर है 180 चो मैं 80 घटाऊंगा तो ये आएगा 100 डिग्री। तो x की वैल्यू x नाल 2 गुणा दे विच है तो उधर जाके सानू पता है कि यह भाग च हो जाएगा 100/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन सी। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि इस की ਜਿਹੜੀ वैल्यू है a की वैल्यू x है जो 50 है और a भी एंगल 50 है। और तुसी चेक करो तीनों कोणों का जोड़ 50 प्लस 50 100 100 प्लस 80 180 हो गया। सो इस अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ x की वैल्यू की कीती है 50 डिग्री फाइंड कीती है। इसको नेक्स्ट इसे टाइप का ਅਸੀਂ क्वेश्चन ਹੋਰ ਕਰਦੇ हैं।
कुछ इस तरह की सानू फिगर दी हुई है। इस तरह इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है 3x, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री और इत्थे एक इस टाइप का निशान बनाया हुआ है A B C D और एग्जामिनर तो कह रहे हैं कि x का मूल्य भी पता करो, मतलब एंगल D भी पता करो और 3x का मूल्य भी पता करो, मतलब एंगल A भी पता करो। और दिता की होया है ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 360, ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈਗਾ x, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ 3x, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ 70, ਚੌਥੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 डिग्री। बट ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ 90 डिग्री, ਇਹ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਗਲ 90 डिग्री ਐਂਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ 90 डिग्री ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਲਾ 90 डिग्री है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 जो मैं बाहरला 90 घटा दूंगा तो अंदर वाला हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा अंदरली में मान लेना एंगल 1, एंगल 1 तो मैं लिख सकता एंगल 1 प्लस बाहरला एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों का जोड़ किस दे बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, इट्स अ लीनियर पेयर, ये आप पहला रूल कर चुके हैं। तो एंगल 1 किस दे बराबर आया 180 डिग्री चो ये प्लस 90 उधर जाके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इट मींस मैं इत्थे एंगल 1 की थां ते 90 डिग्री लिख सकता हूं। हुण सानू पता है कि किसी चतुर्भुज विच चार कोणां दा जोड़ किस दे बराबर हुंदा है 360 डिग्री। तो मैं चारों कोणां नू लिख दूंगा, किवें लिखूंगा एंगल ए कितना 3x प्लस एंगल बी कितना 70 डिग्री प्लस एंगल सी कितना जेड़ा अंदर वाला है 90 डिग्री प्लस एंगल डी कितना x ये बराबर हुंदा है 360 डिग्री। रीजन की है चतुर्भुज विच सानू देना पएगा रीजन, इस दे भी मार्क्स हुंदे हैं। चतुर्भुज विच चारों कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 360 डिग्री दे। तां हुण असीं की करांगे ये चार टर्म्स नू ऐड करांगे आपस च, इक्को जिहियां टर्म्स आपस च ऐड हुंदियां ने। पहला तां मैं इक्को जिहे टर्म्स ने उन्हां नू मैं नेड़े तेड़े कर लवां। आ देखो ये 3x है प्लस आ x इत्थे पिया है प्लस x ये अगे आ जाएगा x प्लस 70 की थां ते मैं 70 लिखूंगा, 90 की थां ते मैं 90 लिखूंगा, बराबर है 360 डिग्री। तो 3x प्लस x 4x प्लस 70 प्लस 90 160 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। तो 4x प्लस 160 डिग्री बराबर है 360 डिग्री दे एंड 4x किस दे बराबर आएगा उधर हैगा 360 डिग्री, ये प्लस 160 उधर जाके हो जाएगा माइनस 160 डिग्री दे। तो 4x बराबर है 360 चो मैं 160 डिग्री घटाऊंगा तो ये आएगा 200 डिग्री दे। इट मींस x नाल जेड़ा 4 गुणा दे विच है उधर जाके की हो जाएगा भाग दे विच, तो ये आएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री।
तो एंगल ए कितना है हुन एंगल ए उसने एंगल ए पूछा है ते एंगल डी पूछा है तो एंगल ए बराबर है 3x 3 गुणा 50 x हम 50 कटिया सी x की वैल्यू 50 डिग्री कटी है तब एंगल ए है 3 गुणा 50 150 डिग्री एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 150 डिग्री आप एग्जाम च नहीं करना मैं तो सिर्फ एक तां करवा रहे हैं ताकि ਅਸੀਂ एंड च चेक भी कर लें और एंगल डी जो है वो किस दे बराबर है x दे ते x का मूल कितना है 50 डिग्री तो मैं x कट के ਅਸੀਂ पेपर च नहीं कटना इस तरह इथे मैं 50 डिग्री लिखूंगा हुन चारों कोणों का जोड़ चेक करो 360 आ रहे ये सिर्फ एक चेक पॉइंट है 150 प्लस 50 200 200 प्लस 90 290 290 प्लस 70 360 इट मीन साडे सारे एंगल्स की ने बिल्कुल सही ने सो इस अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं नेक्स्ट एक होर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ये दिता हुआ है सानू 100 डिग्री यह x है ये भी x है ये है 50 डिग्री और असी की करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन से असी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको से लिख सकते हैं a b c d a भी x है c भी x है तो किवें करांगे इस क्वेश्चन को पहली चीज थोड़ा फास्ट चलूंगा इस क्वेश्चन पे मैं बाहर है 100 डिग्री तो अंदर वाला एंगल कितना होएगा 80 डिग्री अंदर वाले एंगल को 1 मान लूंगा तो एंगल 1 प्लस बाहर वाला एंगल कितना है 100 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री दे कारण की है रेखी जोड़ा वाला एंगल 1 सीगा तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री चो मैं 100 डिग्री माइनस कर दूंगा तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री ऐसे 80 डिग्री लिखती हूं उन्होंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी कही है ए दी ते सी दी मींस ए भी x है ते सी भी x है x की वैल्यू फाइंड करनी कही है तो सानू पता है कि एंगल a कितना है x प्लस एंगल b कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल c वो कितना है x प्लस एंगल d ये कितना है 80 डिग्री ये चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर होता है असि वही सेम रीजन देवांगे कि चतुर्भुज विच चारों कोणों दा जोड़ बराबर होता है 360 डिग्री दे तां इस तो बाद ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ x ਨਾਲ x ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਆਏ प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर है 360 डिग्री x प्लस x 2x प्लस 50 प्लस 80 130 बराबर है 360 डिग्री तो 2x बराबर है 360 डिग्री चो अब प्लस 130 डिग्री उधर जाके की हो जाएगा माइनस 130 डिग्री तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 360 चो मैं 130 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 230 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा दे विच है उधर जाके ये भाग हो जाएगा तो 230 बटा 2 115 डिग्री तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी x की थां ते 115 डिग्री एंड एंगल C की भी वैल्यू आ जाएगी 115
115 डिग्री। और जे ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 115 + 115 230, 230 + 50 280, 280 + 80 360। ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? 360 डिग्री ਦੇ ਬਰਾਬਰ आ गया। इस तो नैक्सट कॉन्सैप्ट वाल असीं हुण मूव करांगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन असीं बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आई थिंक कि जेकर तुहानूं ऐसा क्वेश्चन पेपर च आवे तां तुसीं ईजीली इसनूं अटैम्प्ट करोगे। हुण नैक्सट कॉन्सैप्ट की है? वो कॉन्सैप्ट ये है कि कोई भी ट्रायंगल है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लो आपां नूं ये एक ट्रायंगल दी हुई है, इसका नाम है ए बी सी। ए बी सी एक सानू दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये है एक्स, ये है वाई और ये है z। x y एंड z। ये एंगल सानू दिता हुआ है 60, ये दिता हुआ है 50 और ये दिता हुआ है 70। तो एग्जामिनर तुहानू की कहेगा? x + y + z का मुल पता करो। x + y + z का मुल पता करो। किवें असीं पता कर सकते हैं? मान लो देखो, आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक काटवी रेखा है। तो इत्थे है x और इत्थे है 60। मैं लिख सकदा x + 60 डिग्री ये बराबर होएगा 180 डिग्री के। रीजन की है पिछे? लीनियर पेयर, जैसे उसी पंजाबी च लिखते हैं रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो x की वैल्यू होएगी 180 डिग्री चो मैं +60 उधर जाके माइनस कर दूंगा। तो x की वैल्यू आ गई 180 160, सॉरी 160 कटाए 120 डिग्री। x की वैल्यू होगी 120 डिग्री। एवं y, आ एक सीधी रेखा है, आह एक काटवी रेखा है, तो दोनों सम्स का जोड़ y + 50 बराबर है 180। तो मैं लिख सकता y + 50 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है? रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो y की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, अब +50 उधर जाके हो जाएगा -50 डिग्री। तो y की वैल्यू आ जाएगी साडे कोले 180 चो 50 घटाए 130 डिग्री। तो y की वैल्यू मैं लिख सकता 130 डिग्री। x की वैल्यू आई सी 120, y की वैल्यू आ गई 130। एवं z की वैल्यू देखो, आ एक सीधी रेखा है, आह एक काटवी रेखा है। जेकर ए एंगल 70 है तो ए एंगल किवें पता लगेगा? 180 चो मैं 70 घटा दूंगा, बाकी वाला एंगल मेरे को पता लग जाएगा। तो आप लिख सकते हैं z + 70 बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है? रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री चो +70 उधर जाके -70 डिग्री हो जाएगा। तो z की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, 110 डिग्री। हुण क्वेश्चन की सी? क्वेश्चन ये सी कि x + y + z की वैल्यू पता करनी है। मैं तुहानूं बोलिया सी कि x + y + z की वैल्यू पता करनी है, सानूं एग्जामिनर ने ये पूछा। तो x + y + z ये किस दे बराबर है? ये है x की वैल्यू 120 प्लस y की वैल्यू 130 प्लस z की वैल्यू 110। 110 तब टोटल असी करांगे 120 प्लस 130 250, 250 प्लस 110 360 डिग्री, 360
360 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर है 360 डिग्री। ये असी याद रखना है कि ट्रायंगल दे विच जदों असी फाइंड कीता सी बाहरले तीनों कोणां दा जोड़ वो की आया है, वो आया 360 डिग्री। हुण इसे कॉन्सैप्ट नूं मैं लेके चलदा क्वाड्रिलेटरल तक। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ। मान लो दिस एंगल इज 80, दिस एंगल इज 100, ए 60 है, 120 डिग्री है। देखो चारों कोणा जोड़ अपन पता है कि 360 पहला अपन चेक करिए। 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 120 360। चारों कोणा का जोड़ अपन अंदर देता हुआ है। हुण तो हम एग्जामिनर की कह रहे ए है जी x, ए है y, ए है z, ये वाला एंगल z ते ए वाला एंगल है W। तो एग्जामिनर कह रहे हैं W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता करो। पेपर चाण वाले क्वेश्चन क्वेश्चन W एक्स वाई ते जेड चारां दा जोड़ पता करो, मतलब चारों बाहरले एंगल्स दा जोड़ पता करो, सम पता करो। तो देखो W प्लस 60, देखो आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। तो मैं लिख सकता W प्लस 60, W प्लस 60 किसके बराबर है, W प्लस 60 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो W की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री चो मैं प्लस 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा 60 डिग्री। तो W की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, 120 डिग्री। एवं x की वैल्यू x प्लस 80 बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़। तो नजर आ रहा होगा आ सीधी रेखा है, आ काटवी रेखा है। तो x प्लस 80 बराबर है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू 180 चो मैं 80 माइनस करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। x की वैल्यू की आ गई 100 डिग्री। इसी तरह आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। तो y प्लस 100 आप लिखांगे y प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, असि रीजन जरूर देना होगा। तो y की वैल्यू आएगी, अब प्लस 100 जेड़ा है उधर जाके की हो जाएगा माइनस दा 100 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 चो मैं 100 घटाया 80 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। हुण आ गई गल z की। z की वैल्यू आ सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है। तो दोनों एंगल्स का जोड़ 180, जेकर आ 120 है तो z प्लस 120 किसके बराबर है 180 डिग्री। रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा। तो z प्लस 120 बराबर है 180 डिग्री। तो z की वैल्यू आएगी 180 चो मैं 120 डिग्री माइनस कर दूंगा, z की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ये वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो असं की करना सी w प्लस x प्लस y प्लस z इसकी वैल्यू फाइंड करनी सी। किवें फाइंड होएगी, अपन लिखांगे w प्लस x प्लस y प्लस z किस दे बराबर है ये पता करना सी। तो w प्लस x प्लस y प्लस z, w थां ते मैं लिखूंगा 120 120 प्लस x की थां ते मैं लिखूंगा 100 प्लस y की थां ते मैं लिखूंगा 80
प्लस z की थां पे मैं लिखूंगा 60 60। ये मैं टोटल लगाऊंगा 120 प्लस 100 220 220 प्लस 80 300 300 प्लस 60 360 इट मीनस की होया। तुसी ध्यान दियो, मैं तुहानू पिछले क्वेश्चन ते एक चीज कही सी कि याद रखना है ट्रायंगल दे विच बाहरले तीनों कोणा जोड़ बराबर है 360। हुण चतुर्भुज विच बाहरले चारों कोणा दा जोड़ किस दे बराबर है 360। ये भी एक रूल है, कोई भी फिगर है 5 कुजी 6 कुजी 7 कुजी 1000 कुजी जिन्ने मर्जी कुजी है, बाहरले कोणा दा जोड़ हमेशा ते हमेशा किस दे बराबर रहेगा 360 डिग्री दे बराबर रहेगा। तो मैं इस रूल नू लिख सकता कि किसी भी बहुभुज विच बाहरले कोणा दा जोड़ हमेशा 360 डिग्री दे बराबर हुंदा है। ते एक तो मैं हुण एग्जांपल कराना ताकि जेकर सानू पेपर च ऐसा क्वेश्चन आ जाए असी इस रूल नू अप्लाई करके उसनू सोल्व कर सकते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, एक कहा ट्रायंगल है, ए है x, ए है 125 डिग्री और ए भी है 125 डिग्री, ए बी सी। एग्जामिनर कह रहे हैं कि x का मूल्य पता करो, x की वैल्यू पता करो। हुण इस क्वेश्चन को सोल्व करने दे दो तरीके हैं। किहड़े तरीके हैं? एक तो डायरेक्ट मैथड जिहड़ा मैं तुहानूं हुण करवाया, जे तुहानूं रूल याद है तां असीं लिख सकते हां कि सानू पता है कि त्रिभुज विच, क्योंकि ये त्रिभुज है, जे बहुभुज जे चतुर्भुज ना मैं चतुर्भुज लिख दिंदा। सानू पता है कि त्रिभुज विच बाहरले कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 360 डिग्री। बाहरले कोणा दा जोड़ बराबर हुंदा है 360 डिग्री। चतुर्भुज च भी वही हुंदा है, पंचभुज च भी वही हुंदा है। तो मैं लिख सकदा x प्लस बाहरला कोण दूजा केड़ा 125 डिग्री प्लस तीसरा बाहरला कोण केड़ा 125 डिग्री बराबर है तिन्ना दा जोड़ किस दे बराबर है 360 दे। जेकर सानू ये रूल याद है तो बड़े सिंपल मेथड नाल असी इस नू लिख सकते हैं। असी आपां लिखांगे x + 125 बराबर है 360 और ब्रैकेट दे विच असी आह रीजन दे सकते हैं, या पहला रीजन दे सकते हैं बाद दे विच असी ये इक्वेशन नू लिख सकते हैं। तो x प्लस 125 प्लस 125 250 डिग्री बराबर है 360 डिग्री दे। तो x की वैल्यू आएगी आ 250 प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 250। तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 चो मैं 250 घटाऊंगा, ये हो जाएगी 110 डिग्री। ये तो हो गया बड़ा ही सिंपल मेथड कि सानू सारे एंगल्स बाहरले, जेकर दो पता नहीं तो तीसरा एंगल असी फाइंड कर लांगे, तीनों का जोड़ असी 360 के बराबर लिख लांगे। बट जे किसी बच्चे ने ये वाला रूल नहीं याद तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। जेकर वो सिर्फ लीनियर पेयर के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बारे पता है तो वो किवें करेगा, वो लंबा मेथड है, वो मैं तुहानू दस देना। देखो हुण मैं जस्ट एक मूंह जवानी तरीके नाल तुहानू दसूंगा। आ एंगल 125 है तो इसनू मैं एंगल 1 मनूंगा। रीजंस मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं कई बार ये चीज करवा चुके। एंगल 1 प्लस 125, देखो सीधी रेखा है, ये काटवी रेखा है। एंगल 1 प्लस 125 डिग्री, दोनों का जोड़ दोनों जोड़ बराबर होता है 180 दे। रीजन की है रेखी जोड़ा, अपन पता है रेखी जोड़ा है। तो एंगल 1 किस दे बराबर है 180 चो मैं 125 घटाऊंगा तो ये आया जी 55 डिग्री। तो इत्थे मैं लिखूंगा 55 डिग्री। एवं आ एक सीधी रेखा है, आ एक काटवी रेखा है, इनमें एंगल 2 मान लेना।
तो एंगल 2 प्लस आ बाहर वाला एंगल 125 डिग्री, दोनों का जोड़ बराबर है 180। रीजन असं दे सकते हैं रेखी जोड़ा है, तो एंगल 2 बराबर है 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। हुण ये भी 55 डिग्री आ गई। फाइंड असं की करना सीगा एक्स फाइंड करना है, तो तीसरी चीज हुण ये एक्स फाइंड करने लिए सानू की करना पऊगा, आ तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर होगा। तो जेकर आ 55 है, आ 55 है, तो तीसरा कोण किस दे बराबर होगा 180 चों मैं देखो आप लिखांगे थर्ड जो एंगल है एंगल 3 है, फिर मैं लिखना एंगल 3 प्लस 55 डिग्री, ये तीनों कोणों का जोड़ बराबर है 180 डिग्री है। तो एंगल 3 बराबर है 180 डिग्री, जो माइनस 55 प्लस 55 हमने 110, 110 में इधर जाके माइनस कर दूंगा, एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, 70 डिग्री। हुण तीसरा एंगल सानू पता लग गया 70 डिग्री। हुण एक्स फाइंड करना है, देखो कितना लंबा मैथड होया, पहला इस तो ए फाइंड किया, ए तो ए फाइंड किया, तिन्हां दे जोड़ तो ए वाला फाइंड किया। हुण आ एक रेखी जोड़ा फिर बन गया, आ सीधी रेखा है, आ काटनी रेखा है, जेकर ये 70 है तो ये कितना होएगा, आप लिखांगे x प्लस 70 बराबर है 180 डिग्री। रीजन की है रेखी जोड़ा, तो x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, जो मैं 70 डिग्री माइनस कर दूंगा, x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। पहले केस में ਅਸੀਂ 110 डिग्री ਕੱਢੀ ਸੀ, तो ਉਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੇਢਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 55 है, ए 55 है, दोनों का जोड़ कितना होगा 110, आ बाहर पे है 110। आई थिंक ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि बाहर वाला एंगल अंदर ले ओपोजिट दो एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। सो तो मैं 3-4 रूल्स इस चैप्टर च करवाते हैं। आई थिंक जे आपां नूं ये तीनों चारों रूल्स याद ने ते असीं पेपर च इसनूं प्रॉपरली ध्यान च रखते हुए असीं सारे के सारे क्वेश्चन इन्हां रूल्स दे नाल सोल्व कर सकते हैं। So thank you very much.